So now we will solve a few numerical problems based on chapter atomic structure, and for this we need to have some formulas ready in front of our eyes or maybe in our memory. It would be better that if you have the formula ready in our memory. So what I'll do, I'll make a glossary of the important formulas. Let me check if this part of the board is visible or not. If not, I will shift it. Glossary of important formulas or formulae. First is mvr is equal to nh by 2 pi. Second, energy is equal to mc square, where m is mass of electron and c is the speed of light. 3, E is equal to h nu, where h is Planck's constant and nu is frequency of the light. Okay. 4, before this let me check if it is visible or not. Yes, it is visible. Nu is equal to c by lambda. Alright, so what is n here? N is order of the orbit. Order of the orbit. H is Planck's constant. What is its value? 6.626 10 to the power minus 34 joule second. Again, h, the value of h is same here. Nu is frequency of the wave. Nu is frequency, means reciprocal of time period of any wave, and it can be given as c is speed of light, or of cathode ray, and lambda is wavelength. We had also derived the formula of radius of Bohr's orbit, Rn. This was is equal to n square by z, 0.529 angstrom, and formula for energy of any electron in the nth orbit was equal to 4 pi square m e to the power 4 z by n square h square. So these formulas we had found out, and based on these formulas we will be solving numerical. Also, 7th, if you substitute this value with this and this, then you can write E is equal to h nu is equal to h c by lambda is equal to 4 pi square m e to the power 4 z by n square h square, and 1 by lambda can be written as 1 by lambda is nothing but wave number of waves passing through a particular point, is equal to 4 pi square m e to the power 4 z by n square h cube, and c. Now here, if you take n as a variable for change of any transition, if electron goes from one orbit to the other orbit, if it goes from top to bottom or bottom to top, then due to the change in the energy delta E, the wavelength associated with that is given by 4 pi square m e to the power 4 z by h cube c, and the difference will be 1 by n1 square minus 1 by n2 square.
This value is a constant value again, so it can be written as lambda is equal to 109,677 per centimeter. Because it is lambda, it is 1 by lambda, it is 1 by lambda, it will be in per centimeter. Wave number is equal to, पढ़ा था हम अभी तक, हमने इन फॉर्मूलाज को पढ़ा है जहां पे कि ये एंगुलर मोमेंटम है किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में, ये n टाइम्स h by 2 pi है, E इक्वल टू mc स्क्वायर है, E इक्वल टू h न्यू है, न्यू इज इक्वल टू c by lambda है, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इन द nth ऑर्बिट विल बी n स्क्वायर by z 0.529 एंगस्ट्रॉम या 10 to the power minus 10 centimeter. En, that means energy of any electron in the nth orbit is given by this expression. ये हमने derive किया था, we had derived this, we have derived you can see my previous video for this. E equal to h nu hc by lambda, so hc by lambda can be written as the same value, so 1 by lambda is nothing but the wave number. 1 by lambda को हम कहते हैं वेव नंबर, और न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर. ओके, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, बट न्यू बार इज वेव नंबर. न्यू बार is nothing but 1 by lambda and new frequency is nothing but 1 by t. This is the difference, keep it in mind. Okay, so this is found out by, कैसे निकालते हैं इसको, En का वैल्यू हमें पता है, En का वैल्यू हम निकालते हैं 4 pi स्क्वायर m e to the power 4z by n स्क्वायर h स्क्वायर. nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम लिख सकते हैं h न्यू इज इक्वल टू 4 pi स्क्वायर m e to the power 4z by n स्क्वायर h स्क्वायर. h न्यू को लिख सकते हैं हम h c by lambda, तो ये हो जाएगा 4 pi स्क्वायर m e to the power 4z स्क्वायर by n स्क्वायर h स्क्वायर. तो 1 by lambda को हम लिखते हैं 4 pi स्क्वायर m e to the power 4 z स्क्वायर by n स्क्वायर h क्यूब. ये नीचे आ गया और c भी यहां पे आएगा. तो यहां पे अगर n को हम छोड़ दें और बाकी सबको कांस्टेंट ले लेंगे, सारा कुछ कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू आता है 109,677 by n स्क्वायर पर सेंटीमीटर. ठीक है, लेकिन ये किसके लिए होगा, चेंज इन एनर्जी के लिए होगा. तो जब चेंज इन एनर्जी की बात करेंगे तो दो डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे इसमें. E n1 माइनस E n2 का जो रिलेटेड वेवलेंथ होगा, दैट वेवलेंथ विल बी इक्वल टू, और जो वेव नंबर होगा, रिलेटेड वेव नंबर होगा, दैट वेव नंबर विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू 109,677 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर. ठीक है, इस वैल्यू को हम याद रखते हैं क्योंकि कैलकुलेट करेंगे भी तो भी आएगा इतना वैल्यू, लेकिन याद रखने से क्या होता है, कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है. ठीक है, एंड यूनिट विल बिकम पर सेंटीमीटर. इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट. अब क्या क्या प्रॉब्लम पूछी जाती है. एक प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि भाई मास निकालो, वेलोसिटी निकालो, रेडियस निकालो. ठीक है, n का वैल्यू निकालो, c का वैल्यू निकालो, n का वैल्यू निकालो, न्यू निकालो, लेमडा निकालो, c निकालो, न्यू निकालो, r निकालो, एनर्जी निकालो. ठीक है, वेव नंबर निकालो. वेव नंबर निकालने के लिए कहा जाए तो रीडबर्ग कांस्टेंट हम याद रखेंगे. ठीक है, इसे याद रखना मुश्किल है तो इसको 1.1 पर मीटर भी याद रख सकते हैं, बहुत इजी है. 109,677 को राउंड ऑफ करेंगे तो 1.1 आ जाएगा. ठीक है, वो पर सेंटीमीटर था, ये पर मीटर में आ जाएगा, लेकिन कुछ पावर्स डालने पड़ेंगे, तो इसको 1 इतना पर सेंटीमीटर याद रखना है, रीडबर्ग कांस्टेंट. ये सारा वैल्यूज अगर हमें याद रहे तो हम बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, नाउ वी विल सी ए फ्यू न्यूमेरिकल्स एंड वी विल कीप दिस फॉर्मूला इन द ग्लॉसरी. ठीक है, ग्लॉसरी की तरह हम एक फॉर्मूला रखते हैं, इसको लिखकर, और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एक करके.
एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट, व्हाट इज द एनर्जी required to shift the electron of hydrogen atom from first Bohr orbit to fifth Bohr orbit, मतलब N1 और N2 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। What is the wavelength of the light emitted, वेवलेंथ भी निकालना है। What is the wavelength of the light emitted? What is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state? तो जो ये वैल्यू है E इज इक्वल टू 4 स्क्वायर m e टू द पावर 4z बाई n स्क्वायर h स्क्वायर, इसमें इतना पार्ट कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, n1 और n2 चेंज हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लिखते हैं 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, इतने वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है, बाई n स्क्वायर। अब इजी हो जाएगा, डेल्टा E विल बी इक्वल टू फर्स्ट n1 स्क्वायर देन n2 स्क्वायर, सो इट विल बिकम 2.18 10 टू द पावर -18 जूल बाय n1 स्क्वायर मीन्स n at which orbit? First orbit to the fifth orbit. So first orbit is n1 minus 2.18 10 to the power -18 joule by n5. तो n1 के बदले 1 लिखेंगे और n5 के बदले 5 लिखेंगे, स्क्वायर दोनों में ही है। तो डेल्टा E इज इक्वल टू, अब से हम ऐसे ही लिखेंगे बस 2.18 10 टू द पावर -18 जूल, और अब से हम हमेशा इस तरह से लिखेंगे n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होगा कैलकुलेट करेंगे तो 218 10 टू द पावर -18 जूल 1/1 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, सेम ही होता है, कोई चेंज नहीं। और सो कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.09 10 टू द पावर -18 जूल। दिस विल कम आउट टू बी 2.09 10 टू द पावर -18 जूल। अगर अर्ज में निकालना रहे तो क्या करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं, है ना। What is the conversion factor? One urge is equal to 10 to the power -7 जूल। तो इसे जूल से अर्ज पे चेंज करना रहेगा तो क्या करेंगे, we will divide this with 10 to the power -7, so it will come out to be, means कैसे करेंगे, 10 to the power -7 joule is equal to 1 urge, so 1 joule is equal to 10 to the power 7 urge, therefore
2.09 10 to the power minus 18 joule will be equal to 2.09 10 to the power minus 18 plus 7 is equal to 2.09 10 to the power minus 11 hertz. ये तो एक पार्ट था इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में एक सेकेंड पार्ट भी है, ठीक है। ये हमें निकालना है कि जब ये ट्रांजिशन हुआ, मीन्स व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन केम फ्रॉम द फिफ्थ ऑर्बिट, है ना, 1 2 3 4 और 5, जब फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया तो क्या होगा, लाइट एनर्जी एमिट करेगा, तो उस एनर्जी का वेवलेंथ क्या होगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एनर्जी निकल गया अपना, वेवलेंथ निकालना है हमें। तो वी नो दैट E is equal to h nu is equal to h c by lambda. So this implies lambda is equal to h c by E. तो h का वैल्यू हमें पता है जूल सेकेंड में, तो E is equal to 6.626 10 to the power minus 34 joule second multiplied by speed of light 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एनर्जी की वैल्यू कितनी आई थी जूल में, 2.09 10 to the power minus 18 जूल। तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और जो भी आएगा वो आएगा मीटर में वेवलेंथ निकल जाएगा। सो इन मीटर द वेवलेंथ शुड बी 951 10 to the power minus 10 मीटर और 951 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हम लेमडा में निकाल सकते हैं और इसी प्रकार से हम रिलेट कर सकते हैं सबको, ठीक है। तो इसी वीडियो के सीरीज में जो प्लेलिस्ट होगा इसमें हम इस प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व कर करके इस प्लेलिस्ट में एक के बाद एक सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस रखेंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को दोबारा रिविजिट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब बेसिक्स पे डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक्स पे मैंने पहले डिस्कशन कर लिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम जब सॉल्व किया तो ग्लॉसरी ऑफ इक्वेशन दिखा दिया, जो कन्वर्जन है, डेरिवेशन है, वो सब कुछ कर दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये समझ के कि ग्लॉसरी ऑफ फॉर्मूला वगैरह आपको समझा दिया गया है। आप भी इसको एक चार्ट पेपर में बना के लगा के रख लें, ठीक है। थैंक यू।